Today, on the subject of the human resource management, OEC 3, we will discuss about the Unit 2, and the syllabus of the Unit 2 is the HR sourcing, recruitment, selection process, job analysis, job description, job specification, job design approaches, job evaluation concept and method, employee compensation management, determination of wage and salary fixation, incentives, bonus, ESOP, fringe benefit, performance appraisal methods, and limitations and the problems. These are the syllabus of the Unit 2, and we will discuss about the recruitment and selection process of the Unit 2, which is the last topic of the Unit 2 of the syllabus. Last unit of the syllabus is the recruitment and selection. So in this topic, we will discuss about the concept of the recruitment, sources of the recruitment, concept of selection, steps in the selection process, select and test, psychological test, selection interviews, summary, and test question. After the required number and kind of the human resources are determined, the next step in the procurement function is to locate the sources where from the required human resources can be available and to attract them towards the organization. This is known as the recruitment. रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ह्यूमन रिसोर्सेस को कहां से मिलेगा, ये जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, और ह्यूमन रिसोर्सेस को ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्ट करना ये जरूरी है. तो अकॉर्डिंग टू फिलिपो, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज एंड स्टिमुलेटिंग and encouraging them to apply for jobs in an organization. In the other words, recruitment is a process to discover the sources of manpower to meet the requirements of the staffing schedule. Staffing schedule में sources of the manpower को discover करना ये recruitment process है, and to imply effective measures for attracting that manpower in adequate numbers to facilitate the effective selection of the efficient working forces. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में efficient working forces रहना वो आपको जरूरी है. efficient working forces रहने के बाद ही एक प्लांट का कोई काम होता है. तो इफिशिएंट वर्किंग फोर्स किसी प्लांट में रहना जरूरी है. उस इफिशिएंट वर्किंग फोर्स को रखने के लिए एडुकेट नंबर ऑफ द मेन पावर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, इफेक्टिव मेजर्स टेक ओवर करना पड़ेगा, एंड स्टाफिंग शेड्यूल करना पड़ेगा. ये आपको डिस्कवरिंग ऑफ द सोर्सेस ऑफ द मेन पावर इज द रिक्रूटमेंट, है ना. तो ये आपको रिक्रूटमेंट का आपका डिफिनेशन है. आपको ह्यूमन रिसोर्सेस को हायर करना पड़ेगा. और रिक्रूटमेंट नीड्स आर ऑफ 3 टाइप्स: प्लान्ड, एंटिसिपेटेड एंड अनएक्सपेक्टेड. 3 टाइप का रिक्रूटमेंट होते हैं. एक तो प्लान्ड करते हैं, एक तो एंटिसिपेटेड होता है, दूसरा अनएक्सपेक्टेड कभी भी ले लेते हैं. प्लान नीड्स अराइज फ्रॉम चेंजेज इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट पॉलिसी. जो प्लान्ड नीड जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में आपको जो आपका रिटायरमेंट पॉलिसी होता है, ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी होता है, उसके द्वारा होता है. रिजाइनेशन, डेथ, एक्सीडेंट, इलनेस गिव राइज टू अनएक्सपेक्टेड नीड्स. जो कोई रिजाइन कर देता है, डेथ हो जाता है, किसी की एक्सीडेंट हो जाता है या इलनेस में चला जाता है, तो ये अनएक्सपेक्टेड नीड है जो रिक्रूटमेंट को फुलफिल करता है. And anticipated needs refers to those movements in the human resources which an organization can predict by studying trends in the internal and external environment.
एंटिसिपेटेड नीड को, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देख करके रिक्रूटमेंट करता है. An analysis of these definitions reveal the following feature of the recruitment. What are the different features of the recruitment? यहाँ आपको बताया जा रहा है कि रिक्रूटमेंट के क्या क्या आपके फीचर्स हैं. रिक्रूटमेंट इज ए प्रोसेस और ए सीरीज ऑफ एक्टिविटी रेदर देन ए सिंगल एक्ट और इवेंट. द एक्टिविटी इन दिस प्रोसेस आर डिस्क्राइब्ड अंडर द नेक्स्ट हेडिंग, है ना. Recruitment is a linking activity as it brings together those with jobs, employer and those seeking jobs. ये जो है लिंकिंग एक्टिविटी है जो कि टुगेदर लाता है एम्प्लॉयर को और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, वो टुगेदर लाता है. रिक्रूटमेंट इज अ लिंकिंग एक्टिविटी. Recruitment is a positive function as it seeks to develop a pool of eligible persons from which most suitable ones can be selected. रिक्रूटमेंट जो है एक पॉजिटिव फंक्शन है जो कि सीख करता है, डेवलप करता है पूल ऑफ द एलिजिबल पर्सन फ्रॉम विच द मोस्ट सुटेबल वन कैन बी सिलेक्टेड. ये आपको डिसाइड करता है. द बेसिक पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट इज टू लोकेट द सोर्सेस ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट. जो बेसिक पर्पस ऑफ रिक्रूटमेंट है उसको लोकेट करता है सोर्सेस ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट एंड अट्रैक्टिंग सच पीपल टू ऑफर देमसेल्व्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये आपको बेसिक पर्पस रिक्रूटमेंट का यही है, लोकेट करना, सोर्सेस ऑफ द पीपल को रिक्वायर करना, जॉब रिक्वायरमेंट को अट्रैक्ट करना एंड पीपल ऑफरिंग देमसेल्व्स एम्प्लॉयमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको अट्रैक्ट करना, ये होता है. Recruitment is an important function as it makes it possible to acquire the number and types of the person necessary for the continued functioning of the organization. मनोज सर अटेंडेंस लगा दी? हाँ अटेंडेंस लगा देंगे, अटेंडेंस लगा देते हैं. 7 बच्चे अभी आए हुए हैं. अटेंडेंस जरूरी. अटेंडेंस जिनका जिनका नहीं है, कम हो रहा है, कॉलेज से आया था कि सभी को जो है मैसेज जाएगा क्यों क्लास नहीं कर रहे, तो क्यों बच्चे क्लास नहीं कर रहे, उसका जो है कॉल जाएगी और उससे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं कर रहे. तो अच्छा, आज जो प्रेजेंट है 111 फैजान जी, अतुल दीक्षित 106, दीपक जी 110, अर्जुन देव जी 104, फ्रांसू जी 112, हिमांशु जी 117, कुंदन कुमार जी 163L, एंड निखिल जी 122. है ना. तो 8 पार्टिसिपेंट्स हैं. निखिल जी 122, कुंदन कुमार जी 163, हिमांशु जी 117, फ्रांसू जी 112, फैजान जी 111, अर्जुन देव जी 104, दीपक जी 110, अतुल दीक्षित जी 106 एंड मिस्टर योगेश जी अभी तुरंत ज्वाइन किए हैं 167. गुड मॉर्निंग सर. हाँ जी सर, मेरी अटेंडेंस लगा दो सर. 167 है. हाँ लगा दी सर? अटेंडेंस लगा दी. ठीक है सर. तो अटेंडेंस के लिए जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उसको कॉल करने के लिए बोला हुआ है कि क्यों क्लास नहीं कर रहे और वो रीजन बताएं. ये जो है कॉलेज से कल फोन आया हुआ था तो कह रहे हैं कि जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं उनको फोन करो कि जो है क्यों क्लास नहीं कर रहे. अटेंडेंस बहुत कम हो रहा है. सर किसका कॉल आया था? कल अमित गुप्ता जी का आया हुआ था. अच्छा अच्छा. तो अटेंडेंस के लिए वो कह रहे हैं कि जो है सबको. सर कल सबकी अटेंडेंस आई है ना अभी ग्रुप में?
हाँ, कल इसलिए। सबकी अटेंडेंस आई है, बहुतों की कम है, तो बहुत बच्चे क्लास नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, फिर बाद में पता नहीं उनको कैसे क्या करेंगे। सर मेरी अटेंडेंस तो बहुत ज्यादा आ गई है, अब नहीं करूंगा सर क्लास में। अच्छा, आप क्लास नहीं करोगे? करूंगा सर, करूंगा। नहीं करो कभी क्लास कभी नहीं तो, करूंगा सर। क्लास तो करना चाहिए, क्लास तो करना जरूरी है, क्लास करना जरूरी है, क्लास कीजिए। हेलो सर हाँ मेरी अटेंडेंस 97 चल रही है सर। हाँ, नहीं ठीक है, ठीक है। आपके तो में सर 100। हाँ सर। हाँ हाँ, बोलिए। सर मेरी अटेंडेंस लगा दी आपने अभी की 123 की। 123 नहीं बिल्कुल नहीं लगेगी, तेरी नहीं लगेगी भाई नितेश। नितेश की लग गई, नितेश की सर 120। नितेश की नहीं लगेगी ना? सर लगा दी सर। हाँ लग गई, नितेश की नहीं लग लगेगी गई। भाई, नहीं लगेगी। हाँ, जो बच्चे का धन्यवाद सर, अटेंडेंस बाय। कम है उनके घर पे कॉल जाएगा। वो कल वो बोल रहे थे। नितेश के घर पे कॉल कर दो सर। नहीं, नितेश का तो ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास नहीं कर रहे, उनका अटेंडेंस बिल्कुल जीरो है, क्लास नहीं कर अच्छा रहे। अच्छा, अतुल का कर दो सर, अतुल को कॉल कर दो। हाँ, वो मैं सर अतुल के घर पे कॉल कर दो, दीपक भी क्लास नहीं कर रहा, उसके घर पे भी कॉल कर दो। कौन कौन बच्चे यस हैं सर, मैं बता देता कर हूँ। दो सर, अजीत जल्दी गौतम से है, उसके अभी कर दो सर। अटेंडेंस है। आशीष गोयल है, उसके अभी 2% अटेंडेंस है। सर इसकी भी कर दो सर, अतुल की भी कर दो सर, अतुल। कर 38% दो है। और क्या, चिंटू गलत है, बात है सर क्लास। उनकी 9% है। अब भी कर दो सर, अब भी कर दो, ठीक है, है अभी उठा लूंगा मैं, 4% है। और बाद में मत दूसरा करिए है, फिर। उसकी 52% है। अच्छा, 3 बजे से रावत पहले है, पहले कर देना, 50%। क्योंकि फिर कौशल मैं ही कुमार है, उठाऊंगा। अच्छा अच्छा, 54%। ऐसा भी सीन है। हाँ, उसके बाद नहीं सर, उसके बाद रंजीत पापा कुमार ड्यूटी है, चले जाएंगे, फिर नहीं उसकी करना। जीरो सर परसेंट फिर तो 3 बजे के बाद करवाएंगे इसके घर पे कॉल। सौरभ नहीं दीक्षित सर, है, उसकी 0% है। शिव कुमार सैनी है, उसकी 0%। वो सर किसकी 0% है? ओ सौरभ दीक्षित 0% है, शिव कुमार सैनी 0% है। सर ये तो डिटेन हो जाएंगे सर। हाँ वही तो, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। शुभम भारद्वाज 33% सर है। ऑनलाइन में कैसे डिटेन करेंगे? दमन जी का 15% है। लेनिस का 7% है। सर ऑनलाइन में कैसे डिटेन करेंगे सर? अब वो डिटेन करेंगे, अब पता नहीं अब क्या क्या क्राइटेरिया अपनाएंगे, क्या करेंगे। मोहित शर्मा बताओ 11% अतुल जी, है। अतुल जी क्या करेंगे सर बताओ। पंकज सिंह सर फीस लेंगे ये लोग और कुछ नहीं करेंगे, फाइन लेंगे, इससे ज्यादा ऊपर करनी, उससे हाँ ऊपर, इससे ऊपर इनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की, खाली पीयूष फाइन दो कुमार बैठ जाओ, हाँ पैसे सर के ये कुछ लालची नहीं हैं। कर सकते ये सर। प्रदीप सिंह की सर ये तो 9% है। बदतमीज है सर, मेरी बात सुनो। पुलकित सर वाधवा सुनिए, 0% है। अरे सर सुनते ही तो मनोज नहीं है सर, सर, हाँ, सर सुनते ही तो नहीं है। मेरी बात सुनो सर। सर एक बात बताओ, इन्होंने बच्चों को अटेंडेंस नहीं दी जब बच्चे पेपर देने गए थे सर। इन्हीं की वजह से तो पेपर लेट हुए हैं, तो इनको अटेंडेंस देनी चाहिए बच्चों को, जो बच्चे पेपर देने गए हैं। नहीं तो उनका लिस्ट आप जमा कर दो। अमित गुप्ता जी कल कह रहे थे, वो आप उनको लिस्ट जमा कर दो, नहीं तो बाद में। सर तो आप लगाओगे ना उनकी अटेंडेंस, लगा दो सर आप। नहीं, मैं कहाँ से लगा दूंगा। उज्जवल देवाल का 6% है। विशाल जी की 47% है। विवेक झा की 0% है ना। तो अच्छा यही अच्छा, बच्चे हैं। ऐसी बात है। नाउ कम टू द सिलेबस। नाउ सर सिलेबस कितना रह गया? ये यूनिट 2 का आपका स्टार्ट हो गया है। यूनिट 2 का सिलेबस मैं अभी बता दिया था। यूनिट 2 में जो सर आपने मेरे को सारे नोट्स भेज दिए हैं। सारे नोट्स भेज दिए, सभी यूनिट का भेज दिया, दोनों सब्जेक्ट और का। सर ये यूनिट 2 का भी भेज दिया। यूनिट 2 का भी भेज दिया है। तो यूनिट 2 का अच्छा जो सिलेबस है, सर, वो मैं सारा निकलवा लूंगा तो मेरे को सारा सिलेबस मिल जाएगा। आप बिल्कुल बिल्कुल सारा सिलेबस मिल जाएगा। यूनिट सर 2 एक का बार आप मेरे को सिलेबस भी भेज दोगे सर? आपके पास सिलेबस की पीडीएफ होगी सर, सिलेबस एक भी बार सिलेबस की पीडीएफ। सिलेबस भी गई हुई है शायद, सिलेबस भी भेजा नहीं हुआ सर है। नहीं आई, मैंने चेक किया था सर, एक बार दोबारा नहीं भेज तो देना फिर मैं दोबारा सिलेबस। भेज दूंगा। वो व्हाट्सएप भी मैंने कर दिया था, आपको पर्सनली मेल भी कर दिया था। तो वो आपको सिलेबस भी उसमें होगा, वो सारा चीज जो है मैंने। सर आप एक बार मेरे को ना सिलेबस दे देना दोबारा से। ठीक है, सिलेबस भी मैं आपको दोबारा आपको आपको भेज दूंगा। नोट्स भी मैं सारा व्हाट्सएप कर अतुल दूंगा। जी आपको कुछ चाहिए आप भी बता दो। There will be no तो practice session. है ना, तो
क्या कह रहे हो आप अतुल जी, क्या कह रहे हो? रह रहा है नथिंग नथिंग एचआर सर, सोर्सिंग एंड नथिंग। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब सर स्पेसिफिकेशन, मेरी अटेंडेंस जॉब लगा दो। प्रोसेस। अटेंडेंस तो लगा दिया। जॉब अच्छा ठीक है सर। मेथड्स, एम्प्लॉय कंपनसेशन मैनेजमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ वेज एंड सैलरी फिक्सेशन, इंसेंटिव्स, बोनस, ईएसओपी, फ्रिंज बेनिफिट्स, परफॉर्मेंस अप्राइजल मेथड, लिमिटेशंस एंड प्रॉब्लम। ये आपको सिलेबस आपको रह रहा है, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सिलेबस आपका खत्म हो गया है। आपको इसका यूनिट 2 का आपका सिलेबस रह रहा है, ये आपको 20 नवंबर तक आपको खत्म कर दिया जाएगा, है ना। तो रिक्रूटमेंट इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन एज इट मेक्स इट पॉसिबल टू एक्वायर द नंबर एंड टाइप्स ऑफ द पर्सन नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूड फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शनिंग करना है तो उसमें जो टाइप्स ऑफ पर्सन नेसेसरी है उसको रिक्रूटमेंट करते हैं। केल रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय इज पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन द इंडिया बिकॉज द चांसेस ऑफ मिसमैचिंग ऑफ द अतुल आप जॉब म्यूट क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ पड़े हुए हो आप? एंड द मौज पर्सन ले रहे हैं जिंदगी। आर ग्रेटर। तो पर्सन्स आर कहाँ घर पे ही है क्या तू? हाँ, सारे जॉब सरों के नंबर सीकर, ब्लॉक मार रहा हूँ पापा के फोन से। जॉब सीकर, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? the job seeker tends to क्या कर रहा accept है? any job irrespective of his suitability. कह रहा हूँ Recruitment सारे टीचर्स के नंबर ब्लॉक मार रहा हूँ। pervasive function as all सही organizations. सही है, ऐसे ही कर। अभी मनोज सर का छोड़ के। मनोज सर ने मेरे को बार बार म्यूट कर रहे हैं। चल Recruitment कर is a pervasive function as all organizations बस मनोज engage सर को म्यूट in the नहीं करूंगा। recruitment activity, but the volume and nature of recruitment varies with the size, nature and environment of the particular organization. ये ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके नेचर पे, उसके इन्वायरमेंट पे, उसके साइज पे कितना रिक्रूटमेंट करना है, वॉल्यूम एंड नेचर ऑफ द रिक्रूटमेंट आपको इसी पे डिपेंड करता है। रिक्रूटमेंट इज ए टू वे प्रोसेस, इट टेक्स ए रिक्रूटर एंड द रिक्रूटी। Just as the recruiter has a choice whom to recruit or not, so and similarly the prospective employee can choose or which organization to apply for a job, है ना। रिक्रूटमेंट जो है एक टू वे प्रोसेस है। रिक्रूटर भी रिक्रूटी को चुनता है और रिक्रूटी भी रिक्रूटर को चुनता है। दोनों जो है चॉइस करता है टू रिक्रूट ईच अदर। सिमिलरली द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय कैन चूज फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन टू अप्लाई फॉर ए जॉब। Recruitment is a complex job because too many factors affect it. Image of the organization, nature of job offered, organization policy, working condition and compensation levels in the organization, rate of growth of the organization, past recruitment record, employee condition in the community, trade union. Recruitment जो है एक complex process है जो many factors पे इफेक्ट करता है। वो आपको इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ जॉब ऑफर्ड, किस तरह का नेचर ऑफ जॉब ऑफर्ड है उस पर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी क्या है उस पर डिपेंड करता है। वर्किंग कंडीशन क्या है, वर्किंग कंडीशन पे बहुत इफेक्ट करता है। वर्किंग कंडीशन के कारण, पुअर वर्किंग कंडीशन के कारण इंडिया में बहुत सारे एम्प्लॉय जो है छोड़ के चले जाते हैं। कंपनसेशन लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि कितना कंपनसेशन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देती है कि नहीं भी देती है, क्या देती है नहीं देती है उस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। ग्रोथ का रेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का उसमें डिपेंड करता है। पास्ट रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड जो है वो क्या रहा है ऑर्गेनाइजेशन का उस पर डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द कम्युनिटी उस पर डिपेंड करता है। ट्रेड यूनियन पे डिपेंड करता है। ये सारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि मेनी फैक्टर्स पे आपको डिपेंड करता है ना। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का जो है ये आपको फीचर्स है। दूसरा है सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट। वेरियस सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, namely the internal sources and external sources. internal sources रिक्रूटमेंट दो तरह से जो किया जाता है, एक्स टू एक्सटर्नल सोर्सेस से किया जाता है, दूसरा इंटरनल सोर्सेस से किया जाता है।
इंटरनल सोर्सेस से ट्रांसफर करके दूसरे डिपार्टमेंट से बुला लिया जाता है, या कि उसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन करके उसमें इंटरनल सोर्सेस से किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेस में प्रेस में एडवर्टिजमेंट दिया जाता है, न्यूज़पेपर में एडवर्टिजमेंट दिया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाकर के वहां से आपको कैंपस इंटरव्यू किया जाता है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव सर्च एजेंसी, प्लेसमेंट एजेंसी होती है, वो उसके द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट किया जाता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। एम्प्लॉय रिकमेंडेशन होता है, उनके द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है। रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट भी होता है। फैक्ट्री गेट पे कई आदमी आके अपना जमा हो जाते हैं, वहां पर अपना रिक्रूटमेंट की पॉलिसी जमा करते हैं। तो रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट भी आपको ये जमा होता है। ये आपको रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, दो सोर्सेस है, इंटरनल सोर्सेस है, एक एक्सटर्नल सोर्सेस है। तो इंटरनल सोर्सेस में प्रेजेंट एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है। Permanent, temporary and casual employee already on the pay of the organization are a good source of the employment. जो आपके जो परमानेंट एम्प्लॉय है, टेम्पोररी एम्प्लॉय है, कैजुअल एम्प्लॉय है, वो आपके गुड सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है। वैकेंसी में बी फिल्ड अप फ्रॉम सच एम्प्लॉय थ्रू प्रमोशंस। इन जगह पर वैकेंसी जो फिलअप किया जाता है वो प्रमोशंस के द्वारा फिलअप किया जाता है, ट्रांसफर के द्वारा फिलअप किया जाता है, अपग्रेडिंग के द्वारा फिलअप किया जाता है, एंड इवन डिमोशन के द्वारा भी आपको जॉब को फिलअप किया जाता है। ट्रांसफर एम्प्लॉय, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब विदाउट मेजर चेंजेस इन द स्टेटस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। On the other hand, promotion refers to shifting of an employee to a higher position carrying higher status, responsibility and pay. Retired and retrenched employee who want to return to the company may be hired. जो रिटायर कर गए हैं, रिट्रेंच्ड एम्प्लॉय हो गए हैं, उसको जो कंपनी जो है रिहायर कर सकती है। डिपेंडेंट्स एंड रिलेटिव ऑफ द डिसेस्ड एंड डिसेबल्ड एम्प्लॉय, ये आपको होता है। इंटरनल सोर्सेस हैव द फॉलोइंग मेरिट्स। मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय इंप्रूव व्हेन दे आर एश्योर्ड दैट दे वुड बी प्रिफर्ड इन फिलिंग ऑफ वैकेंसी एट द हायर लेवल, है ना। इंटरनल सोर्सेस का रिक्रूटमेंट करने का कई फायदे हैं। इंटरनल सोर्सेस के जो एम्प्लॉय होते हैं उसको मालूम रहता है कंपनी का कल्चर क्या है, कंपनी का रूल क्या है, वो जो है कंपनी के अदर एम्प्लॉय को वो जानते हैं, आपको वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं मैनेजमेंट करने में, बशर्ते कि एक्सटर्नल सोर्स के एम्प्लॉय से आपको लिया जाए तो वो आपको ज्यादा आपको फायदा होता है। और दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर इंटरनल आदमी को प्रमोट किया जाता है उसको, तो एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ जाता है, मोटिवेशन ऑफ द एम्प्लॉय भी हो जाता है। दे एश्योर्ड दैट दे वुड बी प्रिफर्ड इन फिलिंग ऑफ वैकेंसी एट द हायर लेवल्स। ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी इज क्रिएटेड अमंग द एम्प्लॉय, है ना। तो एक सिक्योरिटी लेवल जो है एम्प्लॉय में आपको क्रिएट किया जाता है। सुटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय कैन बी जज्ड बेटर एज रिकॉर्ड ऑफ देयर qualification and performance is already available in the organization. Chances of the proper selection are the higher. तो suitability of the existing employee को जज किया जाता है for a better record of their qualification and performance. It promotes loyalty and commitment among employees due to sense of the job security and opportunity for their advancement. ये जो है आपको कमिटमेंट किया जाता है एम्प्लॉय ड्यू टू द सेंस ऑफ द सिक्योरिटी के द्वारा अपॉर्चुनिटी फॉर द एडवांसमेंट, उसके लिए आपको जो है आपको रिक्रूटमेंट किया जाता है। स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इज इंप्रूव्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो इंप्रूव कर दिया जाता है। प्रेजेंट एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसीज, देयरफॉर टाइम एंड कॉस्ट ऑफ द ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग आर लो, है ना। प्रेजेंट एम्प्लॉय आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पॉलिसी, देयरफॉर टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग आर लो।
The time and expenditure of recruitment are reduced as there is little need for advertising vacancy or arranging rigorous test and interview. है ना, टाइम एंड एक्सपेंडिचर रिक्रूटमेंट का वो आपको इंटरनल सोर्स का से लेने के बाद वो रिड्यूस कर दिया जाता है. देयर इज लिट नीड फॉर एडवर्टाइजिंग वैकेंसी. जो एडवर्टाइजिंग की वैकेंसी के लिए जरूरत है वो आपको कम पड़ता है अगर आप इंटरनल सोर्स से ही आप कर लेते हैं, है ना. रिग्रेस टेस्ट आपको इंटरव्यू करने की कोई आपको जरूरत नहीं है अगर आपको जो है इंटरनल सोर्स से आप करते हैं. रिलेशन विद द ट्रेड यूनियन रिमेन गुड. ट्रेड यूनियन के साथ में रिलेशन आपका बेटर हो जाएगा बिकॉज यूनियन प्रिफर्स इंटरनल रिक्रूटमेंट पार्टिकुलरली थ्रू द प्रमोशन. ट्रेड यूनियन आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट को ज्यादा प्रिफर करते हैं थ्रू द प्रमोशन. Filling of the higher level jobs through promotions within the organization help to retain talented and ambitious employee. Labor turnover is reduced. Labor turnover भी जो है आपको reduce हो जाता है. Filling of the higher level जो jobs through promotion ये आपको organizations में आपको किया जाता है. तो ये these are the merits of the internal sources of the recruitment. Internal sources के recruitment के ये आपको benefit है. Companies are targeting former employees subtly through their alumni network, get-togethers and through mails. कंपनी जो है आपको पहले के एम्प्लॉय को कांटेक्ट करती है एलुमनी नेटवर्क से, गेट टुगेदर से और थ्रू मेल से. हायरिंग फॉर्मर एम्प्लॉय हेल्प्स कंपनी रिड्यूस ट्रेनिंग टाइम. अगर पहले के एम्प्लॉय को एम्प्लॉय कर दिया जाता है तो ट्रेनिंग टाइम को वो कम करता है. They also fit in the company culture quicker in a situation where employers are constantly grappling with the delivery of the projects. ये आपको करता है. Internal sources, however, suffer from some demerits. First, it may lead to the inbreeding. Secondly, it discourages flow of new blood into the organization. Thirdly, if a promotion is based on seniority, really capable person may be left out. Fourthly, the choice of selection is restricted. More talented outsiders may not be employed. Mobility of labor is restricted. Chance of the favoritism are higher and growth business of the restricted by the limited talent of the insiders. Fifthly, all vacancies cannot be filled up from within the organization. Lastly, the source of recruitment is not available to a new established enterprise. ये आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट के डिमेरिट्स है. तो ये आपको इंटरनल सोर्सेस का और एक्सटर्नल सोर्सेस का ये उसमें बता रहा है. एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट लाई आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. दीज आर एज फॉलो. जो एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट किया जाता है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से आपको किया जाता है. एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से किया जाता है. वेरियस इंस्टीट्यूशंस लाइक IIM. हाँ बताइए. 143 शुभम सिंह का लग गया है. ठीक है सर, ठीक है. 143 शुभम सिंह जी का लग गया है. एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से आपको रिक्रूटमेंट किया जाता है. वेरियस इंस्टीट्यूट लाइक IIM, IITs, engineering colleges, medical colleges, ITI and university are a good source of the recruiting well qualified executives, engineers, medical staffs, pharmacists, chemists, etc. जो डिफरेंट अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में आपको जो है आपको वहां पर अच्छे अच्छे क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव मिल जाते हैं, इंजीनियर्स मिल जाते हैं, मेडिकल स्टाफ मिल जाते हैं. तो वहां से रिक्रूटमेंट किया जाता है. They provide facility for the campus interview. Campus interview के लिए facility देता है and placement देता है. Good institutions have placement cell. एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में प्लेसमेंट सेल होता है, प्लेसमेंट ऑफिसर से होता है टू सर्व द लाइसेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द स्टूडेंट्स. एम्प्लॉयर और स्टूडेंट के बीच में कड़ी स्थापित करने के लिए आपको प्लेसमेंट सेल होता है और प्लेसमेंट ऑफिसर होता है जो कि लाइसेंस करता है. तो दिस सोर्स इज नाउन एज अ कैंपस रिक्रूटमेंट. ये आपको कैंपस रिक्रूटमेंट कहलाता है. ICC Prudential and some other companies make pre-hire job offers wherein engineering and MBA students spend a part of the last semester with prospective employee.
prospective employers, and they are paid a stipend. They are hired as soon as they graduate. Group offers are also a new trend at B School. Executive search agency, placement agent, or headhunters are the in this group. Several private consultancy are there. AP Ferguson Associates, Price Waterhouse, ABC Consultant, etc. perform the recruiting function on behalf of client companies by charging fee. ये फीस प्राइवेट कंपनी होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं जो फी चार्ज करते हैं और एम्प्लॉयमेंट देते हैं. These agencies are particularly suitable for recruitment of executive and specialists. They perform all the functions of recruitment and selection so that the client is relieved of this burden. But the cost of recruitment through these agencies is quite high. Employment exchanges. Government of India has established public employment exchanges throughout the country. These exchanges provide information about job vacancies to the job seeker and help employers in defining suitable candidates. They contain a data bank of the candidate for different types of the jobs. Whenever they get requisition notice from the employer, the concerned candidates are informed. A list of such person is also sent to the employer. The Employment Exchanges Act 1959 makes it obligatory for both public sector and the private sector enterprises. के लिए वो आपको certain type of the vacancy निकालती है. Employment Exchange जो है ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है थ्रू द कंट्री, ये जो है सारा इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब वैकेंसी आपको रखती है, जॉब सीकर का रखती है, और एम्प्लॉयर को आपको डाटा बैंक ऑफ द कैंडिडेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जॉब देने में, रिक्वेशन देने में, नोटिस फ्रॉम द एम्प्लॉयर बताने में, कंसर्न कैंडिडेट को इन्फॉर्म करने में, इसमें उसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आपको हेल्प करती है. Casual callers. Due to the widespread unemployment in the country, many job seekers visit the offices of well-known companies on their own. Such callers are generally considered a nuisance to the daily work routine of the enterprise, but a waiting list of such unsolicited visitors can be prepared to fill the temporary and lower level job. It is a very inexpensive source of the recruitment. ये जो है इनएक्सपेंसिव कैजुअल कॉलर्स जो है आपको कंपनी के यहाँ खुद ही कांटेक्ट करते रहते हैं, वेल नोन कंपनीज के पास जाते रहते हैं, तो ये एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट है ना, वो आपको कंपनी के पास जो है आपको कॉल करते रहते हैं. लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, मैनुअल वर्कर्स कैन बी रिक्रूटेड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स हु मेंटेन क्लोज लिंक्स विद द सोर्सेस ऑफ सच वर्कर्स. मैनुअल वर्कर्स को रिक्रूट किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर का साथ में. दिस सोर्स इज ऑफन यूज्ड टू रिक्रूट लेबर फॉर कंस्ट्रक्शन जॉब्स. कंस्ट्रक्शन जॉब में आपको रिक्रूट किया जाता है. द डिसएडवांटेज ऑफ दिस सोर्स इज दैट व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर लीव द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एम्प्लॉयड थ्रू हिम आल्सो, है ना. गेट रिक्रूटमेंट. अनस्किल्ड वर्कर्स में रिक्रूटेड एट द फैक्ट्री गेट. अनस्किल्ड वर्कर्स जनरली जो है फैक्ट्री गेट पे रिक्रूट कर दिया जाता है. In some industries like jute, a large number of workers as a badli or substitute workers are appointed through the gate recruitment. These may be employed when a permanent worker is absent. More efficient among those badli workers may be recruited to fill the permanent vacancy. A notice on the notice board of the company specifying the details of the job vacancies can be put. Such recruitment is called direct recruitment. ये आपको गेट का जो रिक्रूटमेंट होता है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है. वो आपको वहां पर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया जाता है और बाहर से जो अनस्किल्ड वर्कर है वो आपको वहां पर डेली आ जाते हैं और काम करते हैं और ज्वाइन करके चले जाते हैं. इट इज वेरी इकोनॉमिकल एंड यूज मेनली फॉर द अनस्किल्ड एंड कैजुअल जॉब वैकेंसी. ये अनस्किल्ड और कैजुअल जॉब वैकेंसी के लिए निकाला जाता है. On the spot recruitments through walk-in interview and job fairs are becoming popular, particularly for call center and BPO firms. Similar organizations poaching experienced employees can be recruited by offering better benefits to the people working in the similar organization.
Newly established organization of well-known business houses often lure experienced executive and technical experts from the public sector. This is called the poaching or raiding of the talent. है ना? The growth of the experienced by the domestic retail industry over the last few months has given rise to the poaching of the executive from the rival firms. Reliance Retail has hired several senior executives from global retailers such as Tesco, Best Buy, etc. Employee referral से भी जो है आपको employment किया जाता है. Office bearer of the trade unions are often aware of the suitability of the candidate. Office trade union जो office bearer होता है उसको जो है आपको candidate का suitability को मालूम रहता है. Management can acquire these leaders for suitable jobs. In some organization, there are formal agreement to give priority in recruitment to the candidates recommended by the trade unions. Relative and friends of employee are given priority in recruitment in some company. Public sector undertakings give preference to the local people, sons of the soils in the recruitment. जो लोकल पीपुल होते हैं उसके रिक्रूटमेंट में आपको हेल्प कर ले, पार्टिकुलरली एट द लोअर एंड द मिडिल लेवल, ये आपको हेल्प करते हैं. In this source, some sort of the preliminary screening takes place and the union takes place. दूसरा, press advertisement. Advertisement in the newspaper and journals is a widely used source of the recruitment. The advantage of this method is that is a very wide reach. One advertisement in a leading daily can cover millions of the person throughout the country. Cost of the person is very low. This method can be used for the clerkical, technical, and the managerial job. If the company wants to keep its identifier secret, only a box number can be given for reply. Considerable details about the job to be filled and qualification required can be given in the advertisement to facilitate self-screening. However, this method may bring in a large number of the applications from unsuitable candidates. The company has to waste considerable time and efforts in sorting out the applicants. Internet employee, leasing, and temporary employee, call temporary, are other source of the recruitment. External source of recruitment offer the following advantage. ये आपको एडवांटेज है एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ द रिक्रूटमेंट करने से. People having the requisite skills, education and training can be obtained. जो आपको रिक्वायर्ड स्किल है, एजुकेशन है, ट्रेनिंग चाहिए, वो आपको इससे आपको एक्सटर्नल सोर्स से आपको जल्दी मिल जाता है. As a recruitment is done from the wider market, best selection can be made irrespective of caste, sex or religion. जो एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने पे आपको बेस्ट सिलेक्शन जो है मिल जाता है इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, सेक्स और रिलीजन. वाइडर मार्केट से आपको जो है मिल जाता है एक्सटर्नल सोर्स से करने पे. एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्राउट. एक्सपर्टीज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे पीपुल को भी आपको बुलाया सकता है जो कि एक्सपर्टीज को जानता है, एक्सपीरियंस को जानता है. दूसरा, it helps to bring new blood and new ideas into the organization. ये आपको न्यू आइडिया आपको ऑर्गेनाइजेशन में लाने के लिए आपको प्रेरणा देता है. The source of recruitment never dries up. It is available to even new enterprises. ये जो आपको रिक्रूटमेंट है नेवर जो है ड्राइज है, इट इज अवेलेबल टू इवन इनटू द enterprises. External sources are best when suitable people from within are not available. जब इंटरनल सोर्स से आपको आदमी नहीं मिलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं मिलते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेस आपको बेस्ट है. When the organization is diversifying or merging with other organizations. सर मत पढ़ाओ सर, कितना टाइम क्लास लोगे सर? 40 मिनट से तो ज्यादा हो गए. अच्छा ठीक है ठीक है सर.